मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। आज हम सारे मास्टर कनेक्टेड कन्नड़ वाले हैं, कन्नड़ में करें। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಇದೆ. ಯಾರು ತೆಲುಗು ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನನಗೆ ತೆಲುಗು ಅಷ್ಟು ಬರಲ್ಲ. ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಇದ್ರಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದವರಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈಗ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 100 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ಅದು ಅರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ QLU ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ಇಲ್ನೆಸ್, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಲೋಗನ್ ತರನೇ, ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ದೆನ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಎನಿ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಜೈಟಿ, ಅಸ್ತಮಾ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಕ್ರೋನಿಕ್ ಪೇನ್, ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್, ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಇರಿಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಟೆನ್ಷನ್, ಹೆಡೇಕ್. ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಡೇಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೆಡೇಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇಂದ ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಇದರಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಅದನ್ನ ತಳಪಾಯ ಹಾಕೋಬೇಕು. ನಮ್ದು ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅದು ಸಹಾಯಕ. ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು 15 ನಿಮಿಷ 20 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಧ್ಯಾನ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಪತ್ರಿಜಿ ಧ್ಯಾನನ್ನ ಜನ ಹೆಂಗ್ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಪತ್ರಿಜಿಯವರು ಧ್ಯಾನ ಕೊಡಕತ್ರು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಈಗ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಭಯ ಏನು, ನಾವು ಸಂಸಾರನಿಂದ ನಾವು ತಪ್ಪೋಗ್ಬಿಡ್ತೇನೋ ಸಂಸಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಸಂಸಾರದಾಗ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಗುರುವಿನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ದೀಕ್ಷಾ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಒಬ್ರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫ್, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ದೀಕ್ಷಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಡತಿನೂ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಆಗಲ್ಲ. ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಧ್ಯಾನ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇವರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದೀಕ್ಷಾ ತಗೊಂಡ್ರು. ಆ ರೀತಿಯಾದದ್ದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಹಂಗಾಗಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಬೇಡದಿದ್ರು ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಅದನ್ನ ಗಂಡ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಡತಿನೂ ತಗೋಬೇಕಂತ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಹೆಂಡತಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಆ ಗಂಡ ತಗೊಂಡಂದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿನೂ ದೀಕ್ಷಾ ತಗೊಂತ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇವರು ಪತ್ರಿಜಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಚೇಂಜಸ್, ನಾವು ಲೇಡೀಸ್ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಈ ಧ್ಯಾನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗಿಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರು. ಮುಂಚೆನೂ ಅವರು ಮಹಿಳಾ ಧ್ಯಾನ ಮಹಾಚಕ್ರ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಡ್ತಾಲನ್ನಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲೇನೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಕೋವಿಡ್ ಅಂತ ಅವರು ಒಂದು ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇದಕ್ಕ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಹಂಗ ಅದು ನಮ್ಮದು ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಕ್ಕ ಕೋವಿಡ್ ಒಂದು ನಮ್ಗ ಸಾಧನ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಬಹಳ ಜನ ಲೇಡೀಸು, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋಂಥ ಲೇಡೀಸು ಬಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಕ್ಕ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಂಗಾಗಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ತಂದ್ರಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಅರಿವಿಗೆ, ಈ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇದು ಹೊರಗೆ ಬಂತು. ತುಂಬಾ ಜನ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಆಗೇನಾಯ್ತು, ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಭಯ, ಆ ಭಯದಿಂದನೂ ತುಂಬಾ ರೋಗಗಳು ಉತ್ಪನ್ನ ಆಯ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಔಷಧಿ ಕೊಡಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಹೋಯ್ತು. ಡಾಕ್ಟರ್ನೇ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲೋಪತಿಕ್ ಆಗ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಹತ್ತಿತ್ತು ಕ್ಯೂ. ಪತ್ರಿಜಿ ಒಂದ್ ದಿನನೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಒಂದ್ ದಿನನೂ ಹಿಂಗ ಇದು ಆಗಿ ಮನ್ಯಾಗ ಕೂತಿಲ್ಲ. ಇದು ಏನು ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನ್ಯಾಗ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಅವರು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಇರ್ತದೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿವಿ. ಯಾರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ
ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ ಹೊರಗೆ. स्टार्टिंग ಅಲ್ಲಿ ಭಯ ಪಟ್ಟದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾವ. ಅದನ್ನೇ सॉरी अपने हिंदी वाले आ तो गए मैडम, हम हिंदी भी करेंगे निशा स्टार्ट। जी जस्ट ज्वाइन हाँ जी, किया। तो जी उन्होंने ऐसे हमें इसको बताया, रोग से मुक्ति कैसे हो सकते हैं ध्यान करते हुए। कोविड को एक मेन ये बनाते हुए, उसको लेते हुए, सिचुएशन को, उस परिस्थिति को लेते हुए बहुत बीमार लोग डॉक्टर के पास जाने में डरने लगे, क्योंकि दूसरे बीमारी वाले भी उस समय जाते हैं ना, उनको ये डर था कहीं हमें कोविड का इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा। वो डर से लोग क्या करने के लिए घर बैठे बैठे कुछ ऐसे साधन मिलेगा क्या, तब वो पत्री जी को तो ध्यान में पता चलने वाला था, बोलते 2012 में कुछ होने वाला है करके, तभी बोले थे, बोलते ऐसे बदलाव आने वाला है। उसके बाद से इस ध्यान में बहुत लोग आगे बोलते। तब क्या कर दिया उन्होंने, बैठे बैठे वो लॉकडाउन में वहां फंस गए थे, वो बेंगलोर में रह गए थे। तो वहाँ जो बेंगलोर का पिरामिड है ना, पिरामिड वैली करके बोलते हैं, इंटरनेशनल पिरामिड वैली में लॉकडाउन में वहां रहे, तो वहीं बैठे बैठे तो जितने भी वहाँ लोकल मेडिटेटर्स आते थे उनके साथ बैठ के सब लोगों को ऑनलाइन से, इंडिया और अब्रॉड, बाहर फॉरेन फॉरेन कंट्री जो इंडियंस है, इन सबको कनेक्ट करते हुए ऐसे ध्यान को शुरू कर दिया। वो ऑलरेडी हर स्टेट में जा जाके, मुझे भी उस समय इतना नहीं पता था, तो मैं उसी समय एंटर हुई, तो धीरे धीरे मैंने उनका क्लासेस सुनने लगी, देखने लगी ना, तब पता चलने लगा वो उन्होंने उस समय भूल ही गए एक्चुअली। इसमें ध्यान में आना है नहीं, अपने आप को समझने के लिए, शरीर से हटके आत्मा आत्मा को जानने के लिए आना करके उनका था पहले। जब कोविड आने के बाद इंसान क्या हो गया, बहुत रोगग्रस्त हो गया, एक तनाव मुक्त हो गया, तनाव जिंदगी जीने लगा, तनाव भर जीवन, और वो एक तरह का डर में जी रहा था। तो उससे बाहर आने के लिए उन्होंने उनका जो फिजिकल रियलिटी जो है ना, वो रियलिटी वीडियो में यही बताता, स्पिरिचुअल रियलिटी, उसमें वो तो उससे पहले ही बनाया गया था, वो तो 10 साल पहले का ही था। फिर भी लोगों को, मतलब जब तक वो इंसान उसमें प्रॉब्लम में फंसेगा नहीं, प्रॉब्लम फेस नहीं करेगा, मानेगा नहीं, कितना भी आप बोले। मैं बोल रही हूँ, आप करोगे नहीं, जब आपको लगेगा ना हर चीज से आपका दरवाजा बंद हो जाएगा। कुछ उस समय ऐसे दरवाजा बंद हो गया था, अब दरवाजा खोले, खटखटाए क्या, तो वो क्या हो गया था, मोबाइल ही दरवाजा हो गया था। सब मोबाइल खोले तो उसमें आने लगे उनके, हर कोई सर्च करने लगे इसलिए हम कैसे इससे बाहर आ सकते तनाव से। तब वो इंट्रोड्यूस करा, तो हर एक का अनुभव ऐसे आते गए, बीमारी अपनी बीमारी बताते हुए, बेड रिडन थे वो करने लगे, तो ठीक हो गया हमारा। तो मैं शुरू शुरू में तो अनुभव वगैरह नहीं सुनती थी, बाहर में धीरे धीरे मुझे भी क्लास सुनते सुनते लगने लगा। तो ऐसे हमारे जैसे अननोन है, कोई गांव में है, तो उनको बोलते थे, हमें चलाना नहीं आता था, पूछ पूछ के कैसे एंटर करना है, उसमें जुड़ना कैसे है, पूछ के। जो लोग जूम में नहीं जुड़ पाते उनको यूट्यूब का लिंक, उस लिंक में जाके, वो लिखा रहता है कायदा, कन्नड़ कोई भी लैंग्वेज हो तो नीचे लिखा जाता है, इसमें जाके आपको ब्लू लिंक पे क्लिक करना है। तो ऐसे गांव के लेडीज भी इस चीजें सीखे। तो ये वाले बात एक तरह का रेवोल्यूशन बोलते हैं ना, मूवमेंट बोल के, तो उन्होंने अपना वो शुरू करे थे, पीएसएसएम जो बोलते हैं ना, वो मूवमेंट है पीएसएसएम, स्पिरिचुअल पिरामिड। क्या है उसका मीनिंग पीएसएसएम का, मुझे याद नहीं आ रहा है, लास्ट का याद है मूवमेंट। तो वो चीज उसमें उनका मेन उद्देश्य उनका था बदलाव करने का, हर इंसान रोगग्रस्त, रोग से मुक्त होना है और खुशहाल जिंदगी जीने का, और अपना लाइफ में मतलब मिडल पाथ तो बोलते ही रहते थे वो, अपना जीवन को खुद सुधारना, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना, अपो दीपो वर्ड बोलते थे। और आप अपने किस्मत को खुद लिख सकते, किस्मत कोई भी होता है तो हम किस्मत बोलते थे, वो किस्मत हम बोल बोल के कराए, आप अपना किस्मत को खुद लिख सकते। इनके स्लोगन्स थे। इन स्लोगन में एक और है, मुझे बहुत अच्छा टच हुआ बाद में, ये हमें
इससे बाहर लाने के लिए। मान मधुरा अपमान अति मधुर, कुछ कुछ बातों को तो मैं लिख लिख के रखती थी। अपो दीपो वह हो गया, और ये वाले अभी मान मधुर अपमान अति मधुर। तो ये वाले बात को हमें याद रखेंगे ना, कोई भी हमें अपमान करेगा तो तब तुरंत हमें अवेयरनेस में आ जाएगी। ऐसे ऐसे उन्होंने क्लासेस दिया, तो कोई भी व्यक्ति को रॉन्ग बोलने में नहीं डरे, सीधा मुंह पे। उनको मारने तक भी आए बोलते हैं, तब भी मारने वो आए। मैं उनके मुंह से सुनना तो नहीं है, दूसरे लोग बोले। अभी मैं इस बार अपने गांव गई थी, वहां उनके 20 साल पहले का, हम उनके साथ उस समय काम करते थे। तो वो एक रूम में उनको हमने बिठा के, मतलब एक तरह बंदी, मतलब छुपा के रखा था बकायदा। तो वो अपना काम बता रहे थे ये लोग जाके। तो ऐसे लोग, क्योंकि वो एक वो आ गया था, वो ज्यादा इसमें आ गए थे, वेजिटेरियनिज्म के लिए प्रचार कर रहे थे बहुत। और मूर्ति पूजा का बात भी ये बताया, तो जो व्यक्ति तुरंत सुनेगा ना, उनको लगेगा ये कैसे बात बोला है। जब वो ध्यान करते करते उनको सेल्फ खुद ही रियलाइज हो जाता है। ये चीज मैं बोलती हूँ, आप करते करते आपको हो जाता है अंदर से। जब हमें अंदर ही भगवान मिलेगा, वो परमात्मा आपको प्रत्यक्ष रूप में मिल रहा है, तो तब आप तो सोचेंगे खुद में, मूर्ति के सामने बैठ के इनको देखूंगी, या इधर ही मुझे मिल रहा है। तो उनके बातें सुनेंगे ना, कोई भी इंटेंशन नहीं रखो अपना शरीर के लिए। बीमारी ठीक करो करके नहीं, आप मेडिटेशन करो, अपने आप ठीक हो जाएगा। ध्यान करो, वो एनर्जी आएगा तो अपना जो भी ब्लॉकेज है, जो भी आपका बीमार के कारण है, बीमारी का वो कारण को ठीक कर देगा। कोई जाके बीमारी बोलता है तो वो कोई ऐसे दवा कुछ वो नहीं करते थे, जादू, मतलब कुछ बोलते हैं ना, कुछ कुछ आश्रमों में कुछ मैजिक होता है, मैजिक वैजिक कुछ नहीं होने वाला। मैजिक होना यानी ध्यान करो, आपको ध्यान करोगे वही मैजिक आपको करेगा, उसी को मैजिक। कोई मैं कोई ऐसे नींबू को ये करके झाड़ फूक करके आपका बीमारी हटा दूंगा, ऐसा कुछ ही नहीं है। मैं नहीं तो मैं आपको ये करूंगा तो आपका बीमारी चला जाएगा। तो कोई कोई मास्टर को उन्होंने खरा बोलते हैं, उनके अंदर वो पावर था, बट वो हर एक पे यूज नहीं किया। उनके जो बहुत क्लोज में, बहुत इसमें थे, वो प्रचार में थे, सीनियर मास्टर बने थे, उनका उन्होंने पैर से लात मारा बोलते हैं, उनका ट्रीटमेंट वो व्यक्ति ठीक हुआ। ये सब सुन के तो मुझे ऐसे लगता था, कोई बोला लात मारा तो वो दूसरे दिन आके वो तो बहुत ये थे बोलते, एक सख्ती वाले टीचर होते हैं ना, ऐसे वाले गुस्से वाले टीचर, जो नहीं माने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड चाटा भी मार देते थे बोलते। तो वो लोग उतना उनके ऊपर विश्वास रखते थे, उन चाटे को भी बुरा नहीं मानते थे। तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा ऐसे लेते थे, वो एक्सेप्ट करते। तो कोई व्यक्ति को ऐसे लात मारा बोलते हैं, उसको कुछ बैक में वो था प्रॉब्लम, वो ठीक हो गया। उनके अंदर ऐसे एनर्जी था, लेकिन हर व्यक्ति के लिए यूज नहीं करते। तो मैंने जब अनुभव बोलते, जब जान बोल रहे थे ना, मुझे वो हिमालय यात्रा में गए थे, मानस सरोवर में। तब बोले सब जो गए वालों का एक्सपीरियंस, उन्होंने ये सब लोग वो सरोवर में नहाने के लिए, बहुत ठंड था, पूरा बादल था, बादल को हटा दिया गया। ये बात सुन के ऐसे लगता है कैसे हो सकता है। तो ऐसे हर हर टाइम नहीं किया। वहां उनको नहाने के लिए धूप को धूप आ गया बोलते, तो वो नहीं है, वो बैठ के किनारे में बैठे थे, तो वहां का पूरा उसको जो बादल को हटा के धूप कर दिया। तो उनके साथ ध्यान में जाते तो खड़ी बरसात में बिठा के ध्यान करा, धूप में बिठा के। अभी हम करताल गए थे तो वहां बोल रहे थे, बहुत बड़ा सा बाहर पत्थर है, बिल्कुल गेट के साइड में है। वो पत्थर ऐसे पहाड़ सा है, बहुत हाइट, बहुत ज्यादा हाइट नहीं है, वो 20-30 फीट का होगा। उसके ऊपर जाके बैठ के ध्यान करने लगे गर्मी में। तो वो तो हमें उसके लिए तो बोला नहीं, लेकिन आपको आप ही मेरे जैसे बन सकते, यही बोले। मुझे जब इनके बारे में पता नहीं था, वो 79 के बाद बोलते, 85 या 86 में मैं भी आपके जैसे ही था। मैंने जीवन में एक बार अंडा खाया बोलते हैं। तो मुझे अब जब ये ध्यान में आया, रियलाइजेशन हुआ, सेल्फ रियलाइजेशन, तब मुझे लगा मैं वो एक किसी ने मुझे फोर्सफुली खिलाया था। तो घर में हमारे में भी बहुत पूजा पाठ करते थे, मूर्ति पूजा। मैंने चूहा भी मारा है, मुझे बाद में रियलाइज हुआ तो बहुत खराब दुख लगा, मैंने प्राणी को क्यों मारा।
मैंने उसके लिए पश्चाताप किया। मम्मी ने वो उसके लिए वो रखते थे चूहा मारने के लिए, तो उसको छोड़ के आओ बोलते थे। वो चीज भी उन्होंने बताया, मैं जब इसके बारे में जागृत नहीं था, मैंने जब मैं ध्यान में नहीं आया था, तो ये सब चीजें मैंने की। जो घर वाले पूजा करते थे मैं भी करता था। जब मुझे ध्यान में आने के बाद मुझे उस भगवान को अपने अंदर से मैंने देखा, महसूस किया, वो ध्यान मेरे अंदर खुल गए। मैंने अपना सारे पास्ट लाइफ देखा, तब मुझे मैं अपने ऊपर ही अप्लाई किया। सारे एक्सपीरियंस करने के बाद से वो दूसरों को प्रचार करने के लिए निकलना था, तब वो अपना जॉब रिजाइन करे। वो 89 में उनके लाइफ स्टोरी में ये सारी चीजें हैं। वो 89 में निकल के ये शुरू करा घर घर जाके। उस समय में बहुत बेइज्जती करा, बहुत, उनके पास पैसे भी नहीं था। वो बातें सुन के ऐसे हो सकता है क्या, अभी उनका बहुत अच्छा, लोग तो ऐसे बोलते उनको हाथ पैर ऐसे दबाते थे, इतना अंधे विश्वास में आ गए, मतलब उनके सरेंडरनेस एक तरह। वो बोलते थे मैं तो एक गुरु हूँ, मेरे पैर नहीं पकड़ना, मेरा पद पकड़ो, पाद मत, मतलब पग, पैर नहीं पकड़ना, मेरा पद पकड़ के चलो। जब मैं मर जाऊंगा, चला जाऊंगा, बॉडी बॉडी छोड़ पैकेट होगा, मेरा फोटो रख के पूजा मत करिए, आप मैं जो भी बात बोला उस बात पे चलो। तो ये इसमें एक तरह का ये हुआ है लेडीज के लिए सबसे ज्यादा। वो जहाँ आपको तनाव है, आप परेशान है, निकल के बाहर आ जाओ। मतलब ऐसे उनको सपोर्ट भी किया। मतलब सुन के लगता है ऐसे कैसे आएगा, जो डिपेंडेंट रहता है उनको तो इमिडिएटली आना नहीं हो पाएगा ना। नहीं तो आप सब चीजें झेलो, वहीं रहते हुए ध्यान करो, आपको सब एनर्जी आ जाए, सब पावर आ जाए। आप मेंटली डिस्टर्ब हो, कोई भी चीज से डिस्टर्ब हो रहे हो, कोई डिपेंडेंसी हो, कुछ भी हो, एक चीज आप ध्यान करते हुए रह लो, आपको कोई टच नहीं होगा। आप नहीं ध्यान भी नहीं कर पा रहे हो, सब चीजों से डिस्टर्ब भी हो रहा है, तो निकल लो। पति के साथ एडजस्टमेंट नहीं हुआ, मतलब ऐसे ऐसे सलाह भी दे देते थे, सुनने वालों को ऐसे लगे ये क्या सिखा रहे हैं। उसको आप सोचेंगे ना, उसमें हमारे पूरा ये है ना अंतर मन को खोलने वाली बात। तो आप कभी भी ऐसे, आप उनका वीडियो सुनेंगे ना, मेरा ऐसे सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो जो डीप में आप उनके बातों को, का वीडियोस को, उनके जो कॉन्सेप्ट्स बोलते हो, एक एक कॉन्सेप्ट ऐसे है अंदर में डाउट ही क्लियर हो जाए। उनके कॉन्सेप्ट का ये मेरे पास है 60-70 पेज का, मैं कन्नड़ और हिंदी इंग्लिश में सब में ट्रांसलेट करके रखी हूँ। कभी कभी ऐसे पढ़ती रहती हूँ, वही बातें बताती हूँ, मैं अपने मन से तो कुछ है नहीं। मैं पहले से कर रही थी तो तब का बोलती नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला नहीं बोला है, उन्होंने रिस्ट्रिक्ट करके रखा। आप दूसरों को ये नहीं बोल सकते हैं, आपको हमने ध्यान दिया तो आप अपना ध्यान करके अपना ये कर लेना बस। आप अपना पश्चाताप करके एक दूसरों को क्षमा मांग के, क्षमा लेते हुए देते हुए आप अपना लाइफ को हैप्पी कर सकते हो, बट सिखा नहीं सकते। तो उनका सिद्धांत को तो नहीं सिखा सकती हूँ, मेरे अंतर मन भी उन्होंने नहीं बोला है तो नहीं। अब इनकी बातों को सिखा रही हूँ मैं, इन्होंने जो बोला है, तब लगेगा ना वो तो बिंदास बोल रहे हैं, मैं आज आपको यही सिखाया तो आप कल जाके यही सिखाओ। ये नहीं बोलूंगा आपने क्यों सिखाया। तो उनको यही लगता है जो आप खुशी को आप जीवन जी रहे हो, हैप्पी, तो अफर्मेशन में बोलते हैं आई एम हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी, एवरीथिंग। तो ये सब चीजें मैं हूँ, तो मैं हूँ, वो आ जाएगा, आप तो ढूंढते हुए आ जाएगा। ये सब चीजें नहीं पता था हमें कोई एनर्जी है। हम वो लोगों को देख रहा रहता है, बोलते हैं, कौन व्यक्ति इस टाइप का ध्यान कर रहा है, तो उसको आके वो हेल्प करता है। आपके बॉडी के अंदर के वो सर्जरी, मेडिटेशन सर्जरी बोलते हैं, आपके बॉडी के अंदर मेडिटेशन सर्जरी करके जाते हैं जो मास्टर्स होते हैं। इस बात को तो सुन के ऐसे लगेगा, कितने लोग हमारे हमें फील हुआ, ऐसे लगता है, बोलते बिल्कुल झटका लग गया, किस पार्ट में पेन है, वहीं आके बिल्कुल ऐसे सुई जैसे चुभा, ऐसे होके। आप ये वीडियोस अपना अनुभव बताते लोग, तो वो सुनेंगे ना, ऐसा लगता है हमारे जैसे। पहले तो मुझे लगता था कुछ ही लोग लिमिटेड होंगे, वही लोग सुनाते होंगे। बाद में मैं इतना देखती गई वीडियोस वगैरह,
हर लैंग्वेज का, कन्नड़, हिंदी, इंग्लिश, तो उन सबको तो कोई तो ऐसे तो नहीं बोलेगा ना, झूठ मूठ तो नहीं बोलेगा। मैं हर तरह का ट्रीटमेंट ले लिया, सब करके नहीं होने के बाद इस पे आई, कैसे भी मैं मरने वाली हूँ। कोई कोई को तो बोल दिया आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं। तब मैंने इनका वाला, मतलब इनका वाला में क्या है, ध्यान ही करना है, आपका कॉस्मिक एनर्जी है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉस्मिक एनर्जी ये खुलेगा, कॉस्मिक एनर्जी शरीर में एंटर करेगा, ये ऑटोमेटिकली होता जाता है। हम लोगों को डाउट लगता है ऐसे कैसे, ये वाले क्लैरिटी के लिए हम बोलते जाते हैं ऐसे ऐसे होता है। आप उसको करते जाना, अपना श्वास को देखना, बस श्वास ही देखना और कुछ नहीं। जैसे जैसे आप श्वास देखने का, आप एक जागृति में आ जाते हैं ना, आपको समझ आने लगता है। तो वो तो थॉटलेस में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हम यहाँ लेके आते हैं वो। शुरुआत में नहीं पता चलता, हम तो श्वास देखते जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। पत्री जी के, आयुषी, पत्री जी की बात कर रही हूँ। ओके, आज ऐसे याद आ गया, कन्नड़ में मैं शुरू कर रही थी तो उनका बात ही बोल रही थी, अब हिंदी वाले आ गए तो फिर हिंदी में चेंज किया। चलिए मास्टर्स, उनका कितना भी बोले तो कम हो जाता है। चलिए हम ध्यान में बैठते हैं। ध्यान के लिए बैठने का प्रोसीजर सबको पता है। क्लैस्प योर फिंगर्स। आसन को चूज करना है सबसे पहले, स्थिर एंड सुखासन। सुखमय आसन होना चाहिए, ज्यादा देर तक आप आराम से बैठ सके। और स्थिर, स्थिर वर्टिकली हम जब श्वास लेते हैं तो इनिशियल स्थिर होगा, बाद में अपने आप उसका मूवमेंट चेंज हो जाए। तो आप कोशिश ये करें अपने पूरा बॉडी को, यानी बीच बीच में अपना जो भी डिस्टरबेंस को उसके उस पर ध्यान ना दे। खोले ने हाथ खोल खोल के बार बार खुजली वगैरह होता है तो उसको ना करें। तो उसके लिए आप अपने शरीर के अंगांगों को एक तरह का वो करिए, लव, अफेक्शन, प्यार, ग्रेटिट्यूड दिखाए। कोई हम ध्यान कर रहे हैं, हमें साथ दे, ध्यान, कोई भी डिस्टरबेंस ना करे, क्रिएट ना करे, सीन क्रिएट ना करे। ऐसे करते हुए, बोलते हुए अपना पूरा शरीर को रिलैक्स करेंगे। हाथ पैर को बांध लेना, हाथों को उंगलियों में इंसर्ट करना है, क्लैस्प करना है, एंड पैर को क्रॉस करना है। और रिमूव स्पेक्स, स्पेक्स पहन के नहीं बैठना है। एंड रिलैक्स योर होल बॉडी। रिलैक्स, रिलैक्स योर होल बॉडी, सिर से लेके पैरों की उंगलियों तक। तनाव मुक्त हो जाइए, अपना शरीर को हल्का करिए। जितना हम तनाव मुक्त होंगे उतना अच्छा कॉस्मिक एनर्जी अपने शरीर में फ्लो होने लगता है। म्यूजिक। Then start observing your own natural प्राकृतिक breath. नहीं, कुछ भी नहीं करना, हाथ पैर बांध के इस श्वासों को देखते जाना है। बात करना नहीं है तो उसको मौन बोलते हैं। जब हम मुंह से बातें नहीं करते तो मौन बोलते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो अंतर मौन, अंदर से भी और मुंह से भी मौन हो जाएंगे, विचारों से भी मौन।
विचारों से मौन होने को ध्यान कहते हैं। बात से मौन होना, मौन की बात।
अभी मैं बंद कर दूंगी, तो आप मौन ध्यान करिए 5-10 मिनट्स। बहुत अच्छा ध्यान लगता है आफ्टर म्यूजिक। तो ये हम मॉर्निंग करते 2 घंटे म्यूजिक ध्यान करते 1 आवर मौन ध्यान, बहुत अच्छा फील होता है। कंटिन्यू करें अपना ध्यान को।